Good afternoon, students. The last ਅਸੀਂ orbital concept explain ਕੀਤਾ ਸੀ for the formation of the covalent bond, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ sigma pi bond or pi bond ਦੀ formation show ਕੀਤੀ ਸੀ. How a sigma bond is formed? It is formed by the axial overlapping of the half-filled atomic orbitals, and how a pi bond is formed? It is formed by the sideways overlapping of the orbitals perpendicular to the internuclear axis. ਇਹ ਅਸੀਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿਗਮਾ ਔਰ ਪਾਈ ਬੌਂਡਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਵੀ ਸਟਰੈਂਥ ਆਫ ਦੀ ਸਿਗਮਾ ਐਂਡ ਪਾਈ ਬੌਂਡ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਵੀ ਆਊਟ ਆਫ ਸਿਗਮਾ ਐਂਡ ਪਾਈ ਬੌਂਡ ਵਿਚ ਵਿਲ ਬੀ ਮੋਰ ਸਟਰੋਂਗਰ ਐਂਡ ਵਾਈ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਟਰੈਂਥ ਆਫ ਏ ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਬੌਂਡ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਇਟ ਵਿਲ ਡਿਪੈਂਡ ਅਪੋਨ ਦੀ ਓਵਰਲੈਪਿੰਗ ਆਫ ਦੀ ਆਰਬਿਟਲਸ। ਜਿੰਨੀ ਓਵਰਲੈਪਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹਨਾਂ covalent bond formed ਕੀ ਹੋਏਗਾ? that will be a more stronger bond. The strength of the covalent bond depends upon the extent of overlapping. Greater the overlapping, more stronger will be the covalent bond. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ represent ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੀਏ ਜਰਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਗਮਾ ਓਵਰਲੈਪ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਵੀ ਦੋ ਹਾਫ ਫਿਲਡ ਅਟੋਮਿਕ ਆਰਬਿਟਲਸ ਓਵਰਲੈਪ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ along the internuclear axis। ਇਹ ਕੀ ਸੀ? ਸਿਗਮਾ ਓਵਰਲੈਪਿੰਗ ਵੀ along the axis ਓਵਰਲੈਪਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਕੇਸ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਦੋ ਆਰਬਿਟਲਸ ਓਵਰਲੈਪ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਟੂ ਦੀ ਇੰਟਰਨਿਊਕਲੀਅਰ ਐਕਸਿਸ। ਇਹ ਕੀ ਸੀ? ਸਾਈਡਵੇਜ਼ ਓਵਰਲੈਪਿੰਗ, ਪਾਈ ਓਵਰਲੈਪਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੀਏ ਕਿਹਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਵਰਲੈਪਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਗਮਾ ਓਵਰਲੈਪਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਪਾਈ ਓਵਰਲੈਪਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ? ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਈ ਬੌਂਡ ਦੀ ਓਵਰਲੈਪਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਦੋ ਅਬਵ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਨੀਚੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਓਵਰਲੈਪਿੰਗ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਪੀ ਆਰਬਿਟਲਸ ਓਵਰਲੈਪ ਕਰਦੇ ਪਏ ਤਾਂ ਇੰਟਰਨਿਊਕਲੀਅਰ ਐਕਸਿਸ ਹੈ ਉੱਪਰ ਵੀ ਅਬਵ ਦੀ ਇੰਟਰਨਿਊਕਲੀਅਰ ਐਕਸਿਸ ਵੀ ਓਵਰਲੈਪ ਕਰਦੇ ਪਏ ਔਰ ਬਿਲੋ ਵੀ ਓਵਰਲੈਪ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਦੇਖਣ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਟ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਓਵਰਲੈਪਿੰਗ ਹੈ ਸਿਰਫ ਸਾਈਡਸ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਓਵਰਲੈਪਿੰਗ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਸਾਈਡਸ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਓਵਰਲੈਪਿੰਗ ਹੈ ਫਰੰਟ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਦੋ ਪਰਸਨਸ ਫਰੰਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਗਲੇ ਮਿਲਦੇ ਪਏ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਓਵਰਲੈਪਿੰਗ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋ ਪਰਸਨਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਈਡਸ ਟੱਚ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆ, ਜੁਆਇਨ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਖੜੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਮਸ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੈਗਸ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੱਚ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਓਵਰਲੈਪਿੰਗ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਕੀ ਹੋਈ? ਲੈਸਰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਰੰਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਓਵਰਲੈਪ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਓਵਰਲੈਪਿੰਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅ ਸਿਗਮਾ ਬੌਂਡ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਅ ਮੋਰ ਸਟਰੋਂਗਰ ਬੌਂਡ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਏ ਪਾਈ ਬੌਂਡ। ਪਾਈ ਬੌਂਡ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਕ ਬੌਂਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਗਮਾ ਬੌਂਡ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਕੰਸੀਡਰਡ ਐਜ਼ ਅ ਸਟਰੋਂਗ ਬੌਂਡ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਸੀ ਇਹ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸਿਗਮਾ ਬੌਂਡ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਵਰਲੈਪਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਦੀ ਪਾਈ ਬੌਂਡ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਗਮਾ ਬੌਂਡ ਇਜ਼ ਅ ਮੋਰ ਸਟਰੋਂਗਰ ਬੌਂਡ। ਇਹ ਐਕਸਟੈਂਟ ਆਫ ਓਵਰਲੈਪਿੰਗ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਟਰਮ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਆਰਬਿਟਲਸ। ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਆਰਬਿਟਲ ਥਿਊਰੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਟੋਮਿਕ ਆਰਬਿਟਲਸ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਵਰਲੈਪ ਕਰਦੇ ਆ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਨ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਨਿਊ ਆਰਬਿਟਲਸ। ਨਵੇਂ ਆਰਬਿਟਲਸ ਬਣਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਆਰਬਿਟਲਸ, ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਦੇ ਆਰਬਿਟਲਸ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਆਰਬਿਟਲਸ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋ ਅਟੋਮਿਕ ਆਰਬਿਟਲ ਓਵਰਲੈਪ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਐਕਸੀਅਲ ਓਵਰਲੈਪਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਆਰਬਿਟਲ ਬਣ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਟੋਮਿਕ ਆਰਬਿਟਲ ਸੀ, ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਅਟੋਮਿਕ ਆਰਬਿਟਲ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਓਵਰਲੈਪ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ? ਓਵਰਲੈਪ ਰੀਜਨ, ਜਿੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੈਕਸਿਮਮ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਓਵਰਲੈਪ ਰੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆ ਮੈਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਓਵਰਲੈਪ ਰੀਜਨ ਸੀ ਉਹ ਮਰਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਸੀ, ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਓਵਰਲੈਪ ਰੀਜਨ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੈਕਸਿਮਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟਿੰਗ ਆਰਬਿਟਲ ਬਣਿਆ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗਾ? ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਸੈਡ ਐਜ਼ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਆਰਬਿਟਲ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਗਮਾ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਆਰਬਿਟਲ ਮੈਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਿਗਮਾ ਬੌਂਡ ਦਾ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਆਰਬਿਟਲ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਈ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਾਈ ਬੌਂਡ ਬਣਦਾ, ਜਦੋਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਪੀ ਆਰਬਿਟਲਸ ਬਣਦੇ ਪਏ ਆ ਤਾਂ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਆਰਬਿਟਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹ ਇੰਟਰਨਿਊਕਲੀਅਰ ਐਕਸਿਸ ਸੀ। ਔਰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਪੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ ਦੀ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮਿਨੀਮਮ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨੋਡਲ ਪਲੇਨ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਇੰਟਰਨਿਊਕਲੀਅਰ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ?
ਮਿਨੀਮਮ ਜ਼ੀਰੋ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋਬਸ ਇੱਕ ਅਬਵ ਓਵਰਲੈਪ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਇੱਕ ਬਿਲੋ ਓਵਰਲੈਪ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਰੀਜਨਸ ਬਣਨਗੇ। ਆ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਰੀਜਨਸ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਬਸ ਓਵਰਲੈਪ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰੀਜਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਆਫ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਬਸ ਓਵਰਲੈਪ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਨੀਚੇ ਰੀਜਨ ਬਣ ਗਿਆ ਆਫ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਦਿਸ ਵਿਲ ਬੀ ਸੈਡ ਐਜ਼ ਦੀ ਪਾਈ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਆਰਬਿਟਲ। ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਸਿਗਮਾ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਆਰਬਿਟਲ, ਔਰ ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਪਾਈ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਆਰਬਿਟਲ। ਫੀਚਰ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਗਮਾ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਆਰਬਿਟਲ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਸਿਮੈਟ੍ਰੀਕਲ ਅਬਾਊਟ ਦੀ ਇੰਟਰਨਿਊਕਲੀਅਰ ਐਕਸਿਸ। स्टेटमेंट आती है सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज ऑलवेज सिमेट्रिकल अबाउट द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। और सिमेट्रिकल का मतलब की है, आ देखो तुहानू देखण च सिमेट्रिकल लगदा पे भी इक्को तरह की प्रोबेबिलिटी, जिन्नी प्रोबेबिलिटी इस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के उपर है उन्नी ही की हैगी है नीचे हैगी, जदों कि ये अनसिमेट्रिकल है। क्योंकि देखो पहला प्रोबेबिलिटी ज्यादा आई, फिर की आ गया नोडल प्लेन जीरो प्रोबेबिलिटी आ गई, फिर की आ रही है प्रोबेबिलिटी आ रही, तो एक अनसिमेट्रिकल नेचर आ रही। तो एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस दोनों के विच असीं ये शो करना भी जिहड़ा सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है इट इज ऑलवेज सिमेट्रिकल अबाउट द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, जबकि कि जिहड़ा पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है इट इज अनसिमेट्रिकल। क्योंकि इस चैप्टर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है भी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिग्मा बॉन्ड एंड ए पाई बॉन्ड। +1 कैमिस्ट्री के विच दो मेन डिफरेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों ही आए होंगे फाइनल पेपर च। एक ऑर्बिट और ऑर्बिटल का डिफरेंस एटॉमिक स्ट्रक्चर के विचों, और एक ये वाला सिग्मा एंड पाई बॉन्ड का डिफरेंस। जिस तरह कल पाया भी सी क्वेश्चन कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। तो देखो हुण कितने ज़्यादा डिफरेंस बना सकते हो तुसीं। पहला डिफरेंस असीं शो करिए फॉर्मेशन ते भी सिग्मा बॉन्ड इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय द एक्सियल ओवरलैपिंग ऑफ द हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जदों कि पाई बॉन्ड किस तरह बनता पिया? बाय द साइडवेज ओवरलैपिंग। दूसरा पॉइंट, सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन के दौरान ओवरलैपिंग किस तरह हो रही है? अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, जदों कि पाई की फॉर्मेशन के दौरान ओवरलैपिंग किस तरह हो रही है? परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तीसरा पॉइंट तुसीं पढ़िया सी भी जिहड़ा सिग्मा बॉन्ड है इट मे बी फॉर्म्ड बाई एनी ऑफ द टाइप ऑफ द ओवरलैप, SS, PP या SP, तिन्हां दे विचों जिहड़ी मर्जी ओवरलैप देख ली असीं किसी दे नाल भी बन सकदा। जदों कि जिहड़ा पाई बॉन्ड है वो सिर्फ किहड़ी ओवरलैप दे नाल बनदा? PP ओवरलैप दे नाल, ना SS दे नाल बनदा ना ही SP दे नाल। जदों परपेंडिकुलर P ऑर्बिटल्स ओवरलैप करदे आ दैन दे फॉर्म दी पाई बॉन्ड, या फिर अगे चल के D पाई देखांगे। तो असीं ये शो कर दिता कि एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस ये आ गया साडे कोल भी जिहड़ा सिग्मा बॉन्ड है इट कैन बी फॉर्म्ड बाई एनी ऑफ द 3 टाइप्स ऑफ द ओवरलैप्स। SS हाइड्रोजन मॉलिक्यूल च बनिया सी, PP फ्लोरीन मॉलिक्यूल च बनिया सी, और SP HF मॉलिक्यूल च बनिया सी। जदों कि जिहड़ा पाई बॉन्ड है इट इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय द PP ओवरलैप ओनली। फोर्थ डिफरेंस देखिए तो सिग्मा बॉन्ड कैन बी फॉर्म्ड अलोन, सिग्मा बॉन्ड इकल्लियां बन सकता है। मैं डिफाइन किया सी भी जदों किसी को सिर्फ एक ही हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है तो जिहड़ा मर्जी होवे असीं उहनूं अलोंग दी एक्सिस ही लेना, और वो हमेशा किहड़ा बॉन्ड बनाएगा? सिग्मा बॉन्ड ही बनाएगा। जदों कि पाई बॉन्ड कैन नॉट बी फॉर्म्ड अलोन, पहला सिग्मा बनेगा और फिर पाई बनेगा। मैं दस्सिया सी भी पाई बॉन्ड्स कित्थे आंदे आ? डबल बॉन्ड दे विच या ट्रिपल बॉन्ड दे विच, जिहड़ा जे एक सिग्मा हुंदा और फिर पाई बनता है। जिहड़ा पाई बॉन्ड है इट कैन नॉट बी फॉर्म्ड अलोन, इकल्ला कभी नहीं बनता है, पहला सिग्मा बनेगा दैन दी पाई विल बी फॉर्म्ड। तो इस तरह रिप्रेजेंटेशन शो करांगे। फिर स्ट्रेंथ आ गई, a sigma bond is always a more stronger bond, pi bond is a weak bond। सिमेट्री शो कर देती भी a sigma molecular orbital is always symmetrical about the internuclear axis, जदों कि जिहड़ा pi molecular orbital है it is unsymmetrical about the internuclear axis। तो इस तरह तुसीं डिफरेंसिस शो कर सकते हो, कितने डिफरेंसिस होर भी बन जाते हैं। तो मेन जिहड़े मैं शो कर दिते भी पहला असीं फॉर्मेशन ते डिफाइन कर दिता भी एक्सीयल ओवरलैपिंग दे नाल बन रहा सिग्मा, ओवरलैपिंग अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, उस साइडवेज ओवरलैपिंग दे नाल बन रहा परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। सिग्मा बॉन्ड किसी भी टाइप ऑफ ओवरलैप दे नाल बन सकता, जदों कि पाई बॉन्ड जिहड़ा सिर्फ PP ओवरलैप दे नाल ही बनता पिया है। तीसरा असीं रिप्रेजेंट कर दिता भी सिग्मा बॉन्ड कैन बी फॉर्म्ड अलोन, जदों कि पाई बॉन्ड कैन नेवर बी फॉर्म्ड अलोन, इट इज ऑलवेज फॉर्म्ड अलोंग विद द सिग्मा बॉन्ड। स्ट्रेंथ आए सिग्मा बॉन्ड इज ऑलवेज ए मोर स्ट्रोंगर बॉन्ड,
ਜਦੋਂ कि पाई बॉन्ड कंपैरेटिवली की हुंदा, इट इज़ अ वीक बॉन्ड है। मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स रिप्रेजेंट कीते भी जिहड़ा सिग्मा मॉलिकुलर ऑर्बिटल है इट इज़ सिमेट्रिकल अबाउट द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, जदों कि जिहड़ा पाई मॉलिकुलर ऑर्बिटल है इट इज़ अनसिमेट्रिकल अबाउट द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। रोटेशन ते भी आंदा, अगे चल के पढ़ांगे असीं भी सिग्मा बॉन्ड दे अराउंड फ्री रोटेशन पॉसीबल है, जदों कि पाई दे अराउंड फ्री रोटेशन इज नॉट पॉसीबल। तो ये सी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेनिंग द फॉर्मेशन ऑफ द सिग्मा बॉन्ड एंड द पाई बॉन्ड। देखो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी दो तरह के नाल असीं रिप्रेजेंट करने हैं, पहली सी ऑर्बिटल कॉन्सेंट्रेशन के अकॉर्डिंगली और दूसरी शो करनी है क्योंकि कर की रहे हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। पहला असीं कीता इन टर्म्स ऑफ ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट, ठीक है। फर्स्ट सी इन टर्म्स ऑफ ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट जिहड़ा सी सिग्मा और पाई बॉन्ड रिप्रेजेंट की। हुण दूसरा मैं शो कर रहा इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी की टर्म दे विच असीं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी शो करनी है भी अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली की है भी जदों भी दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स या दो एटम्स कंबाइन करते हैं और उन्होंने एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं आपस दे विच, when the two atoms they are approaching towards itself to get combined, को मॉलिक्यूल बनाने दे लई ਜਦੋਂ दो एटम्स आपस ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਫੋਰਸਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਫੋਰਸਸ ਆਫ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਨਿਊ ਫੋਰਸਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ get developed and new forces of repulsion get developed. Forces of attraction किस तरह, जिस तरह देखो मैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की पिक्चर शो कर रहा। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मीनस जो दो हाइड्रोजन एटम्स एक दूसरे वाल की कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं, और हाइड्रोजन 1s1 एक दा 1s1 दूसरे दा। अब मैं शो कर रहा भी एक दा 1s एटॉमिक ऑर्बिटल इट इज कंबाइनिंग विद 1s एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ द अदर, ठीक है। एक इलैक्ट्रॉन इहदे कोल है, एक ही इलैक्ट्रॉन इहदे कोल है। असीं ये शो कर रहे हैं भी जो दो हाइड्रोजन एटम्स एक दूसरे वाल नूं अप्रोच करते पे आ टू फॉर्म ए मॉलिक्यूल, तो उन्होंने नवीं फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डिवेलप हो रही हैं, नवीं फोर्सेस ऑफ रिपल्शन। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन किहड़ियां, एक दा न्यूक्लियस दूसरे दे इलैक्ट्रॉन नूं अपने वाल अट्रैक्ट करेगा, दूसरे दा न्यूक्लियस पहले दे इलैक्ट्रॉन नूं अपने वाल अट्रैक्ट करेगा। जिस तरह मैं शो कर रहा भी एक दा न्यूक्लियस सी, दूसरे दा न्यूक्लियस इहदे नाल लिंक्ड मैं शो कर दिता, इलैक्ट्रॉन इहदा E1 कर दिता, इलैक्ट्रॉन इहदा E2 शो कर दिता, ठीक है। अपने अपने हाइड्रोजन एटम है दोनों, हाइड्रोजन एटम पहला न्यूक्लियस विद इट्स इलैक्ट्रॉन, न्यूक्लियस विद इट्स इलैक्ट्रॉन। मैं क्या नवीं फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डिवेलप हो रही हैं। वो नवीं फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की है, पहले का न्यूक्लियस दूसरे के इलैक्ट्रॉन को अपने वाल अट्रैक्ट कर रहे, और दूसरे का न्यूक्लियस पहले के इलैक्ट्रॉन को अपने वाल अट्रैक्ट कर रहे। नवीं फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डिवेलप हो रही, और इस तरह ही नवीं फोर्सेस ऑफ रिपल्शन भी ऑपरेट करनगियां। एक का न्यूक्लियस दूसरे के न्यूक्लियस को रिपेल कर रहे, और एक का इलैक्ट्रॉन दूसरे के इलैक्ट्रॉन को रिपेल कर रहे। एक ही हो गया, दीज आर दी फोर्सेस ऑफ रिपल्शन। और एक ही है अजड़ियां सी मैं शो कर रहा, दीज आर दी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। असी ये शो कर दिता कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डिवेलप हो रही हैं और फोर्सेस ऑफ रिपल्शन डिवेलप हो रही। जो दो हाइड्रोजन एटम्स आपस कंबाइन करते पे, उन्होंने ऑर्बिटल्स अप्रोच करते पे एक दूसरे को, तो नवीं फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डिवेलप हो रही हैं और नवीं फोर्सेस ऑफ रिपल्शन। जिस तरह मैं रिप्रेजेंट किया भी एक का न्यूक्लियस दूसरे के इलैक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा, एक ही हो गई फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। और रिपल्शन की है, दोनों के न्यूक्लियाई एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, दोनों के इलैक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं क्योंकि सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर। हुण तुसीं पढ़िया भी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ऑलवेज रिजल्ट इन द लोअरिंग ऑफ एनर्जी। ड्यू टू द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एनर्जी हमेशा की होंगी है रिलीज, जिहदे कारण नैट एनर्जी की करेगी, घटेगी और मॉलिक्यूल स्टेबल होएगा, क्योंकि जिन्नी एनर्जी घट होंगी है उन्नी स्टेबिलिटी की होंगी है ज़्यादा। तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ऑलवेज रिजल्ट इन
the lowering of energy, decrease in energy, and makes the molecule stable. ਜਦੋਂ ਕਿ forces of repulsion ਦੇ ਕਾਰਨ energy ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, increase, ਔਰ ਇਹਨਾਂ repulsions ਦੇ ਕਾਰਨ stability ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, decrease. ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਫੋਰਸਸ ਹੈ that always make the molecule stable, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ repulsive forces ਹੈ they always decrease the stability of the molecule. ਤਾਂ ਇੱਕ stable molecule ਕਿਦੋਂ ਬਣੇਗਾ, ਜਦੋਂ magnitude of the attractive forces is more as compared to the magnitude of the repulsive forces. ਜਦੋਂ attractive forces ਦਾ magnitude repulsive forces ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ the molecule get formed, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ net effect ਕੀ ਹੋਏਗਾ, lowering of energy, and a stable molecule will be formed. ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਹੀ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਕਿਉਂ ਬਣਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ in hydrogen, during the formation of hydrogen molecule, the magnitude of the attractive forces comes out to be more than the repulsive forces. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ magnitude calculate ਕਰਕੇ ਦੇਖਨੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਵੀ magnitude of the attractive forces comes out to be more than the magnitude of the repulsive forces. ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ net effect ਕੀ ਹੋਏਗਾ, attractive forces dominate ਕੀਤੀਆਂ, energy ਕੀ ਕਰੇਗੀ, decrease, और एक स्टेबल मॉलिक्यूल विल बी फॉर्मड. तो इस तरह असी शो करना भी एनर्जी कॉन्सेंट्रेशंस के अकॉर्डिंगली की हैगा भी व्हेन द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ टू एटम्स कंबाइन विद ईच अदर, then new forces of attraction and forces of repulsion operate between them. Forces of attraction किहड़ियां हैगियां, the nucleus of one attracts the electrons of the other, और forces of repulsion किहड़ियां हैगियां, internuclear repulsion and inter-electronic repulsion. Attractive forces always result in the release of energy, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ net energy ਕੀ ਕਰੇਗੀ, decrease, और जिनी energy घट होएगी molecule will be stable. ਜਦੋਂ कि repulsive forces हमेशा energy ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ, increase ਕਰਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ stability ਕੀ ਕਰੇਗੀ, decrease. ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਟੇਬਲ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਦੀ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਆਫ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਫੋਰਸਸ ਮਸਟ ਬੀ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਦੀ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਆਫ ਦੀ ਰਿਪਲਸਿਵ ਫੋਰਸਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ then the magnitude of the attractive forces comes out to be more than the magnitude of the repulsive forces. ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਟੇਬਲ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਬਣਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਵੀ why hydrogen molecule is formed, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन के दौरान मैग्नीट्यूड ऑफ द अट्रैक्टिव फोर्सेस कम्स आउट टू बी मोर दैन द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिपल्सिव फोर्सेस. हुण इहनूं मैं एक एनर्जी डायग्राम की फॉर्म दे विच रिप्रेजेंट करन लगा, उहदे नाल तुहानूं होर ज़्यादा क्लीयर होएगा भी इधर मैं एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा और इधर लै रहा इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस R. ठीक है, मैं शो कर दिता भी आ लाइन आ मैक्सीमम एनर्जी है भी जो ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस के विच कंबाइन नहीं किए थे, एक एटॉमिक ऑर्बिटल है और दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल है, दे आर प्रेजेंट सैपरेटली. हुण असीं शो करते पे हैं भी ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन कर रहे, एक दूसरे के क्लोज आ रहे. तो मैं क्या क्लोज जो आ रहे हैं तो अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमीनेट कर दी पे ज्यादा है एज कंपेयर टू रिपल्सिव, जिहदे कारण एनर्जी की करेगी, डिक्रीज करनी शुरू होगी. एनर्जी स्टार्ट्स डिक्रीजिंग. आ देखो मैं शो कर रहा थे भी क्लोज आ गया, देखो एक दूसरे से टच कर देता है कि दे आर कमिंग क्लोज टू ईच अदर. ठीक है, क्लोज आ रहे हैं और एक पर्टिकुलर पॉइंट से आगे इन्हां दी एनर्जी मिनिमम हो जाएगी, एनर्जी विल बी मिनिमम. उस वेले मैं कहांगा भी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर एग्जैक्टली बैलेंस्ड बाय द फोर्सेस ऑफ रिपल्शन. फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर एग्जैक्टली बैलेंस्ड बाय द फोर्सेस ऑफ रिपल्शन, और उस वेले एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करके द मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड, एक स्टेबल मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड. ਅਸੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੋ ਐਟੋਮਿਕ ਆਰਬਿਟਲਸ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਦੇਖੋ क्लोज ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਓਵਰਲੈਪ ਕਰ ਗਏ, ਤਾਂ मैं क्या फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है एज कंपेयर टू दी फोर्सेस ऑफ रिपल्शन, जिहदे कारण एनर्जी की कर रही है, डिक्रीज. आ देखो नीचे नूं एनर्जी डिक्रीज करनी सी, ऊपर नूं इनक्रीज, तो एनर्जी की कर रही है, डिक्रीज कर रही है. कदों तक, जिनी देर तक मिनीमम नहीं हो जाती. मिनीमम कदों होएगी, जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर एग्जैक्टली बैलेंस्ड बाय दी फोर्सेस ऑफ रिपल्शन. उस वेले जिहड़े एटॉमिक ऑर्बिटल्स है दे आर ओवरलैप्ड विद ईच अदर और एक स्टेबल मॉलिक्यूल बन रहे. क्योंकि जे ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ क्लोज ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਐਟੋਮਿਕ ਆਰਬਿਟਲਸ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਰਿਪਲਸਿਵ ਫੋਰਸਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਜਾਣਗੇ.
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਟੋਮਿਕ ਆਰਬਿਟਲਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੋਜ਼ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਰਿਪਲਸਿਵ ਫੋਰਸਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ એનર્ਜੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਆ ਜਾਏਗੀ ਸਰ, और मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। तो मॉलिक्यूल कित्थों तक बन रहा है, इस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस तक बन रहा। तो यह जी डिस्टेंस है बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्टेंस है भी आर, यह जी है दो न्यूक्लियस के विच डिस्टेंस व्हेन द मॉलिक्यूल इज फॉर्मड। इनू असीं एक नाम दिंदे, इट इज सेड एज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, इट इज बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ का मतलब ही की है कि जो दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर गए दे the bond get formed, उस वेले उन्होंने न्यूक्लियाई दे विच कितनी डिस्टेंस हैगी, that will be said as the bond length। बॉन्ड लेंथ ਨੂੰ डिफाइन कितनी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है नहीं आ रही है ना एग्जैक्टली, ठीक है। यह वाली डिस्टेंस जी है डिस्टेंस सेम है, एंड डायग्रामेटिक दे विच मैं ऑर्बिटल्स रिप्रेजेंट कीते हैं, जनरल शो कीता। तो बॉन्ड लेंथ ਨੂੰ डिफाइन ही किस तरह करने हैं, इट इज डिफाइंड एज the internuclear distance between the two bonded atoms। दो बॉन्डेड एटम्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨਿਊਕਲੀਅਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, that is said as the bond length। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੌਂਡ ਲੈਂਥ ਹੈ ਇਟ ਕਮਸ ਆਊਟ ਟੂ ਬੀ 74 ਪਿਕੋਮੀਟਰਸ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਇੰਨੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਈ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਆਈ ਹੈ, 74 ਪਿਕੋਮੀਟਰਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ 74 ਪਿਕੋਮੀਟਰ ਇਜ਼ ਦੀ ਬੌਂਡ ਲੈਂਥ ਆਫ ਦੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਮੋਲੀਕਿਊਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋ ਕੀਤੀ कि किस तरह एनर्जी लैवल डायग्राम के नाल जो दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स दूर दूर सी एनर्जी मैक्सीमम सी क्लोज आए एक दूसरे के, तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ऑपरेट करने के नाल एनर्जी की होगी, डिक्रीज होनी शुरू हुई। आ देखो क्लोज आ रहे हैं, टच करके फिर अल्टीमेटली ओवरलैप कर गए और जो क्लोज आए तो एक पर्टिकुलर स्टेज से आगे एनर्जी मिनीमम हो जाती है जो फोर्सेस आर बैलेंस्ड। तो उस वेले असीं कहने मॉलिक्यूल इज सेड टू बी फॉर्मड। उस स्टेज से आगे जिन्नी डिस्टेंस बिटवीन दी न्यूक्लियाई आ रही है उन्होंने असीं की कह रहे हैं, बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ असीं डिफाइन कर दिता, इट इज डिफाइंड एज द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन दी टू बॉन्डेड एटम्स इन ए मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल दे विच दो बॉन्डेड एटम्स दे विच जिहड़ी इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस आ रही है उन्होंने असीं की कहने, दैट इज सेड एज द बॉन्ड लेंथ। असीं हुणे डिफाइन कीता भी एनर्जी इज ऑलवेज रिलीज्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द बॉन्ड्स। जदों असीं एक मोल ऑफ द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना रहे हैं, 1 मोल ऑफ द बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बिटवीन 2 हाइड्रोजन एटम्स, तो असीं कह रहे हैं कि डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। तो जे उस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल नूं असीं ब्रेक करना होवे तो डेफिनेटली कह सकते हो भी सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड, क्योंकि बॉन्ड तो सेम ही है ना। जिहड़ा हाइड्रोजन असीं डिफाइन किया हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड है, ਇਹਦੀ फॉर्मेशन के दौरान जिन्नी एनर्जी रिलीज हुई है डेफिनेटली इस बॉन्ड ਨੂੰ ब्रेक करने के लिए उन्नी ही एनर्जी की होएगी, रिक्वायर्ड होएगी। तो वो जी एनर्जी रिक्वायर्ड है या वो जी एनर्जी रिलीज्ड है उन्होंने असीं एक नाम दिंदे हैं, दैट इज सैकेंड वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, इट इज सेड एज बॉन्ड एनर्जी। दो टर्म्स है भी बड़ियां इंपॉर्टेंट टर्म्स चलनियां इस चैप्टर दे विच, फर्स्ट इज बॉन्ड लेंथ एंड सैकेंड इज बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी असीं डिफाइन ही किस तरह करनी है, इट इज डिफाइंड एज the amount of energy released during the formation of 1 mole of the bonds between the similar atoms। या फिर असीं ये कह दिए it is defined as the amount of energy required to break 1 mole of the bonds between the atoms। और particularly जो ब्रेक करने के लिए एनर्जी बोल रहे हैं तो उन्होंने असीं एक नाम भी दे देने बॉन्ड डिसोशिएशन एनर्जी। उस वेले एक पर्टिकुलर नाम यूज कर रहे हैं, इट इज बॉन्ड डिसोशिएशन एनर्जी, क्योंकि डिसोशिएशन मतलब ब्रेक करना। तो बॉन्ड्स नूं ब्रेक करने के लिए जिहड़ी एनर्जी चाहिए उन्होंने असीं की कहने, इट इज सेड एज द बॉन्ड डिसोशिएशन एनर्जी। तो मतलब इस टॉपिक तो साडे कोल दो टर्म्स आईयां बड़ियां इंपॉर्टेंट, एक बॉन्ड लेंथ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन दी टू बॉन्डेड एटम्स, और एक बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड डिसोशिएशन एनर्जी। भी जदों असीं एक मोल ऑफ दी बॉन्ड्स बना रहे हैं बिटवीन दी एटम्स तो उन्होंने बॉन्ड दी फॉर्मेशनस के दौरान कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, 1 मोल ऑफ दी बॉन्ड्स की फॉर्मेशन के दौरान कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, दैट विल बी दी बॉन्ड एनर्जी। या 1 मोल ऑफ दी बॉन्ड्स बिटवीन दी एटम्स नूं ब्रेक करने के लिए जिन्नी एनर्जी रिक्वायर्ड है उन्होंने असीं कहता बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड डिसोशिएशन एनर्जी। तो ये सी
एनर्जी कॉन्सिडरेशन, विलियम्स बॉन्ड थ्योरी इन टर्म्स ऑफ एनर्जी कॉन्सिडरेशन। असी इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली शो किया भी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनता है। कई बार कंपैरिजन आता भी अकॉर्डिंग टू विलियम्स बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन दैट हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड बट हीलियम मॉलिक्यूल इज नॉट फॉर्म्ड, He2 इज नॉट फॉर्म्ड। असी ऑर्बिटल कॉन्सैप्ट के नाल इनू डिफाइन कर दिता सी कि हाइड्रोजन के कोल हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है, इस करके ओवरलैप कर सकता और कोवलेंट बॉन्ड बना सकता। बट हीलियम के कोल कोई हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल सी, इस करके वो नहीं बना सकते। हुण आ जांदा एनर्जी कॉन्सिडरेशन के अकॉर्डिंगली तुसीं किस तरह एक्सप्लेन करोगे। हुण हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना भी 2, कॉन्फिगरेशन की है 1s2। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 मीनस उहदे कोल 2 इलैक्ट्रॉन्स है। आ देखो आ हीलियम के एटम मैं इस तरह रिप्रेजेंट कर रहा, न्यूक्लियस के कोल 2 इलैक्ट्रॉन्स, इट इज E1 एंड E2। एक हीलियम एटम का न्यूक्लियस रिप्रेजेंट किया, एक हीलियम एटम की रिप्रेजेंटेशन। दूसरा हीलियम एटम देखिए तो वह न्यूक्लियस और उहदे इलैक्ट्रॉन्स, E2 रिप्रेजेंट, ठीक है। मैं शो कर देता इट इज He1 और की है He2। अब 2 हीलियम एटम्स को इस तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पहला हीलियम एटम उहदा न्यूक्लियस और उहदे 2 इलैक्ट्रॉन्स, उहदा न्यूक्लियस ते उहदे 2 इलैक्ट्रॉन्स। हुण असीं डिफाइन किया भी जदों 2 एटम्स क्लोज आते हैं तो नवीं फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डिवेलप हो रही और नवीं फोर्सेस ऑफ रिपल्शन। मैं पहला अट्रैक्टिव फोर्सेस रिप्रेजेंट कर लिया। आ देखो दूसरे का न्यूक्लियस पहले के इलैक्ट्रॉन अपने वाल अट्रैक्ट कर रहा है, दूसरे का न्यूक्लियस पहले के इलैक्ट्रॉन्स नूं, देखो दूजे के न्यूक्लियस ने पहले के दोनों इलैक्ट्रॉन्स नूं अपने वाल अट्रैक्ट किया। इस तरह ही पहले का न्यूक्लियस दूसरे के इलैक्ट्रॉन्स नूं अपने वाल अट्रैक्ट कर रहा है। तो यह मैं रिप्रेजेंट कीतियां न्यू फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। और कितनी आईयां काउंट करो जरा, इट इज 1 2 3 एंड 4, थिक वालियां करनियां, डॉटेड नहीं, नवियां असीं शो करनियां भी कितनी तो कितनी आ रही 4 फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। देखो कितनियां, इट इज 1 2 3 एंड 4। न्यू फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कितनी आई 4। हुण देखिए फोर्सेस ऑफ रिपल्शन, फिर मैं रिप्रेजेंट कर रहा E1 E2 पहले का, ठीक है, और आ रिप्रेजेंट कर देता इट इज E1। अच्छा इनू E1 ही करो, देखो E1 एंड मैं कहता E1 डैश, E2 एंड E2 डैश, 1 वाले हो गए, एक 2 वाले हो गए। पहले का E1 एंड दूसरे का E1 डैश, ठीक है, और यह शो कर देता E2 एंड हेयर इट इज E2 डैश। हम नवियां फोर्सेस ऑफ रिपल्शन देखिए, देखो पहली तो इंटर न्यूक्लियर रिपल्शन, हम दूसरी रिपल्शंस देखिए तो की आएगी, E1 E2 नूं रिपेल कर रहा, E1 डैश E2 डैश नूं रिपेल कर रहा, E1 E2 डैश नूं रिपेल कर रहा और E2 E1 डैश नूं रिपेल कर रहा। ਇਹ ਨਵੀਆਂ फोर्सेस ऑफ रिपल्शन आ गई। देखो असीं डिफाइन किया भी जो 2 हीलियम एटम्स एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं, एक हीलियम एटम उहदा न्यूक्लियस और उहदे 2 इलैक्ट्रॉन, दूसरे हीलियम एटम का न्यूक्लियस और उहदे 2 इलैक्ट्रॉन्स। असीं क्या नवीं फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ऑपरेट कर रही हैं, एक का न्यूक्लियस दूसरे के दोनों इलैक्ट्रॉन्स को अपने वाल अट्रैक्ट कर रहा है, तो 2 ते 2 कितनी आ गई 4 अट्रैक्टिव फोर्सेस। रिपल्सिव फोर्सेस देखिए, एक का न्यूक्लियस दूसरे के न्यूक्लियस को रिपेल कर रहा है, इंटर न्यूक्लियर। हुण इलैक्ट्रॉन किस तरह E1 E2 को रिपेल कर रहा है, E1 डैश E2 डैश को रिपेल कर रहा है, 2 हो गई। E1 E2 को रिपेल कर रहा है तो E2 डैश को भी तो रिपेल करेगा। इसी तरह E1 डैश E2 डैश को रिपेल कर रहा है तो E2 को भी रिपेल कर रहा है। तो टोटल रिपल्सिव फोर्सेस काउंट करके देख लो 5 आ रही हैं, 5 रिपल्सिव फोर्सेस। तो देखो तो क्लीयर हो गया भी हीलियम मॉलिक्यूल जे असीं बनाने की कोशिश करने हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ द रिपल्सिव फोर्सेस कम्स आउट टू बी मोर दैन द अट्रैक्टिव फोर्सेस। रिपल्सिव फोर्सेस का मैग्नीट्यूड अट्रैक्टिव तो की हो गया ज़्यादा, और असीं पहला ही डिफाइन किया भी जे रिपल्सिव फोर्सेस ज़्यादा तो मॉलिक्यूल की हो जाएगा अनस्टेबल, इस करके हीलियम मॉलिक्यूल इज नॉट। तो कंपैरिजन आता है भी वाई अ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड
ਵਾਈਲ ਏ ਹੀਲੀਅਮ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਇਜ਼ ਨॉट ਫਾਰਮਡ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰੀਜ਼ਨ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਣਾ ਵੀ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੀ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਆਫ ਦੀ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਫੋਰਸਸ ਕਮਸ ਆਊਟ ਟੂ ਬੀ ਮੋਰ ਦੈਨ ਦੀ ਰਿਪਲਸਿਵ ਫੋਰਸਸ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਸਟੇਬਲ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੀਲੀਅਮ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੀ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਆਫ ਦੀ ਰਿਪਲਸਿਵ ਫੋਰਸਸ ਬਿਕਮਸ ਮੋਰ ਦੈਨ ਦੀ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਫੋਰਸਸ। ਔਰ ਵੈਲੈਂਸ ਬੌਂਡ ਥਿਊਰੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟੇਬਲ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਕਿਦੋਂ ਬਣੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਫੋਰਸਸ ਆਰ ਮੋਰ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਦੀ ਰਿਪਲਸਿਵ ਫੋਰਸਸ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਦੀ ਕੰਪਲੀਟ ਵੈਲੈਂਸ ਬੌਂਡ ਥਿਊਰੀ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ।